اللہ صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے گلگت بلتستان پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ الیکشن لڑا اور جیتا عبوری صوبہ 32 اسمبلی سے قانون سازی ہوئی 32 بل پیش ہوئے اور منظور بھی کرا لیے پی ٹی آئی نے لیکن عبوری صوبہ ردی کی ٹوکری میں گیا اس کا کیا بنا؟ بالکل ردی کی ٹوکری میں نہیں گیا ہے. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل ہے, یہ ایک قوم کا فیصلہ ہے, ایک مستقبل کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کے پیچھے پھر یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے وہ بھی سامنے ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی نے جو عبوری آئینی صوبہ ہے اس کی قرارداد متفقہ طور پہ پاس کر کے وفاق کو بھیجا. یہاں پہ کمیٹی بنی, کمیٹی کے ریکمنڈیشنز آپ سب کو پتہ ہیں. تو انشاءاللہ وہ بل 100% کنسنسس کے ساتھ پھر اسمبلی میں جانا ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا انسان کی نیت ہو تو کام ہو جاتا ہے. ظاہر خان صاحب کی نیت تھی, انہوں نے گلگت بلتستان آ کے 1 نومبر کو اعلان کیا. اس اعلان کے بعد یہ پروسیس جا کے آپ کا جو اس کا لاء کی منسٹری ہے وہاں سے ایک پروپوزل بن کے پرائم منسٹر تک جا چکا ہے. اب جب تک پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسمبلی کے اندر 100% سپورٹ نہیں کرے گی تب تک یہ ممکن نہیں ہوگا. ہم ضرور اسمبلی کے اندر اپنا گورنمنٹ جو ہے بل پیش کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے نہیں کیا ہے تو کل بھی ہم نہیں کریں گے, ہم کریں گے, اپنے رائٹ ٹائم میں کریں گے, کنسنسس پیدا کر کے کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بل پیش کریں اور آگے سے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کوئی ایسا رکھنا ڈالے, ایسے کوئی روڑے اٹکائے جس سے ہماری پوری جو ایک سوچ ہے علاقے کی اور لوگوں کی ایک ڈیمانڈ ہے وہ خراب ہو جائے. تو انشاءاللہ تسلی رکھیں, خان صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنے ٹائم پہ. اب امتحان ہمارے اوپر نہیں ہے, ہم نے تو بل پیش کرنا ہے. امتحان ہے پی پی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ گلگت سے مہربانی کر کے آ جائیں, یہاں آ کے اپنے لیڈر سے ملے اور ان کو کہیں کہ جی گورنمنٹ جب بل پیش کرے گی آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. امتحان میں ہم نہیں ہیں, وہ ہیں. سے آپ لوگوں نے کوئی ورکنگ نہیں کی کہ آپ 5 سال میں یہ کچھ کیا اور احتساب تو آپ کی پارٹی کا جو ہے وہ سلوگن ہے, تو گلگت بلتستان میں آپ نے کیا کیا؟ نہیں, ہم تو کیے جا رہے ہیں نا جی. دیکھیں وہ جب گورنمنٹ میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے, ہم وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتے تھے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ان کو نیب نے بلایا تھا, ان کے مہمان تھے, تو انشاءاللہ وہ پکے پرمننٹ مہمان بننے والے ہیں. تو انہوں نے اپنا جو محلہ ہے کشروڈ جہاں سے ان کا تعلق ہے, اپنے یقین کریں آپ سب کو میں کہتا ہوں کہ کبھی گلگت اگر جانا ہوا نا تو ایکس چیف منسٹر کے اس محلے میں آپ ضرور جائیں. وہ جو باتیں کرتے ہیں نا, جو بندہ اپنے محلے کی گلی کو ٹھیک نہ کر سکے وہ کیا گلگت بلتستان کو ٹھیک کرے گا. اسی لیے انہوں نے اپنا وہ چھوڑ کے گھر شفٹ کیا ہے, بہت بڑی عالی شان کوٹھی بنا کے, وہ مطلب جٹیال میں اس نے اپنی رہائش بھی بنائی ہے. تو یہ نیب آزاد ایک ادارہ ہے, جس نے کرپشن کی ہے اور جو ہماری گورنمنٹ میں بھی کرے گا. میں تو ایک آرگینک پولیٹیکل ورکر ہوں, شاید اسمبلی میں 1 یا 2 ہم ہوں گے جو انہیریٹ ہو کے ہمیں سیاست نہیں ملی ہے. باقی پاکستان کی پولیٹکس میں تو انہیریٹڈ لوگ آتے ہیں, باپ داداؤں کی سیاست کو اپناتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. ہم تو بالکل خان صاحب کے اس نعرے کو لے کے گلیوں میں سڑکوں میں پھر کے, تو انشاءاللہ جس نے کرپشن اس سے پہلے کی ہے بھگتے گا. وقت لگتا ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر چیز کے لیے ٹائم لگتا ہے, لیکن پاکستان کے خزانے سے جس نے چوری کی ہے آج نہیں تو کل اس کی پکڑ ہوتی. اللہ خان صاحب, میں تقریباً 1 ماہ وہاں پہ کوریج کے لیے گیا تھا جب الیکشن ہوئے تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہ دھاندلی کے الزام لگے تھے, خاص کر کے آپ کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا احتجاج کیا گیا تھا. اس حوالے سے
अभी बाकायदा तौर पे क्या सूरत हाल है? और दूसरा, आप जो है GB हुकूमत के तर्जमान हैं, उसके साथ साथ आप नैब के भी तर्जमान बन गए हैं कि आप बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द मेहमान होंगे। ये आप धमकी दे रहे हैं, खबर दे रहे हैं, या तर्जमानी कर रहे हैं? आपके 2-3 सवाल आगे जी। एक तो वो धांधली वाला, पाकिस्तान में हमेशा हारने वाली टीम, हारने वाला जो बंदा है वो यही इल्ज़ाम लगा के अपने अगला 5 साल पूरा करता है। जिस शख्स ने मेरे ख़िलाफ़ धांधली का इल्ज़ाम लगाया था, ये उसकी तरफ से फ़र्स्ट टाइम नहीं है। वो चौथा इलेक्शन हार रहा है और 4 इलेक्शनों में वो हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम में अदालत जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हाथ में जीत वाली लकीर नहीं बनाई है। ये मेरा गुनाह नहीं है, ये उसका है, ठीक है। बाकी कोर्ट में केस है, हम केस लड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इलेक्शन जीतने पे नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 दिन और 4 रातें रिकाउंटिंग हुई है मेरे ख़िलाफ़। वो इसलिए नहीं हुई है कि ये जीत ना जाए, वो किसी और मकसद के लिए हुई थी। मैं उस मकसद के पीछे नहीं जाता। और आपने कहा कि नेब का तर्जमान बनता होता तो मेरे अल्फाज उस किस्म के होते। मैंने आपको क्लियर कट कहा कि नेब हमारे अंडर में नहीं है, आज़ाद है, तो फिर मेरे ख्याल से मैं तर्जमान नहीं हूँ उनका। खान साहब, आपने हेल्थ के हवाले से काफ़ी आप ये बताएं, हेल्थ से पहले ज़ाहिर है हमें इत्यादि चीज़ें जो है हमें लेनी पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान में जो गंदम जाता है, रिपोर्ट्स ऐसी आई कि उस गंदम में 1 किलो तो नीचे उसका कचरा निकलता है, मतलब उसके अंदर ऐसे मतलब कि मटीरियल है जो खाने लायक नहीं। दूसरी बात, ये जो ऑयल्स जाते हैं, ये जो फूड एंड चीज़ों की सप्लाई है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान, उसको मॉनिटर करने के लिए ऐसी कौन सी हिकमत अमली आपकी गवर्नमेंट अपना रही है? और उसमें चेक एंड बैलेंस क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में होती नहीं है। एक बिस्किट के 5 किस्म वहाँ पर जाते हैं और वो 5 किस्में मुख्तलिफ बीमारियाँ वहाँ पर लोगों के अंदर छोड़ जाती हैं। बच्चे खाते हैं, बुजुर्ग खाते हैं, हर किस्म के लोग वो जो इनटेक करते हैं फूड, उसकी चेक एंड बैलेंस आपकी हुकूमत किस तरह से करेगी और क्या हिकमत? देखें, फूड अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है, आपको ख़ुद पता है। फूड डिपार्टमेंट है जिसको सिविल सप्लाई आप कहते हैं। तो फूड अथॉरिटी एक वाइब्रेंट एक डिपार्टमेंट होता है हर सूबे में, हमारे पास नहीं है चूँकि हम नौमौलूद सूबा हैं। आपकी अवामी नौइयत का बहुत ज़बरदस्त किस्म का सवाल है, जिसकी तरफ इंशाअल्लाह हम फूड अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान में नया एक अथॉरिटी बनाने के लिए चीफ़ एग्जेक्टिव की तरफ से डायरेक्टिव्स जा चुके हैं। ये बन जाएगा। फिर वो जो हमारे कमोडिटीज़ इस्लामाबाद से मुख्तलिफ़ सूबों से आती हैं, उसका चेक एंड बैलेंस, उसकी क्वालिटी कंट्रोल, ये सारा वहाँ देखा जाता है। तो यकीनन बेहतरीन किस्म की वहाँ पे फूड अथॉरिटी का कायम होना वक्त की ज़रूरत है। फतहुल्लाह साहब, आपकी हुकूमत जब से बनी है, आप तामीर और तरक्की का स्लोगन आपने अपनाया हुआ है और खुशाइन बात भी है, लेकिन हकाइक देखा जाए तो आप ही की काबीना के अंदर मुख्तलिफ ग्रुपबंदी है। आप ही की काबीना एक पेज पे नहीं, और असम्बली इजलास में भी अमूमी तौर पे आपने खुद ही 1-2 असम्बली इजलास में आपने पॉइंट ऑफ आर्डर में ये बात की है, काबीना के मेम्बरान हुकूमत ही पे अदम एतमाद का इजहार असम्बली फ्लोर में करते हैं। तो जब काबीना ही अदम एतमाद की तरफ जारी हो, तो कैसे ये आप डिलीवर कर पाएंगे जो आपने स्लोगन अपनाया हुआ है तामीर और तरक्की का? नहीं, काबीना पूरी एक पेज के ऊपर है, ऐसा नहीं है। हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच की बात करनी चाहिए। ऐसे ही ना गलत डगर पे लोगों को डाल के, तो 2 मिनट के लिए अगर मैं यहाँ पे किसी और अंदाज में भी आपका ये एक लाइन में बात आपको मैं कर सकता हूँ, इसका जवाब दे सकता हूँ। हाँ, कुछ मिनिस्टरों के अपने छोटे इश्यूज़ होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, जो उनका हक है। तो उसको अगर मीडिया ये समझे कि जी ये आपस में इत्तेफाक में नहीं है, इनके अंदर कोई रिफ्ट्स हैं, रिफ्ट्स पार्टी और गवर्नमेंट के हवाले से बिल्कुल नहीं है। वो सब एक ही प्लेटफार्म में है। वो प्लेटफार्म पीटीआई का है और टॉप पे खान साहब बैठे हैं, सूबे के ऊपर चीफ मिनिस्टर खालिद खान खुर्शीद बैठे हैं। तो इसमें किसी को कोई शक व शुबा होना ही नहीं चाहिए कि काबीना के अंदर कोई रिफ्ट्स हैं। हाँ, इश्यूज़, इंडिविजुअल इश्यूज़ वो होते हैं, वो इशू अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने हल हो जाता है, वो कोई मैटर नहीं करता। ये बताएं कि जो इस वक्त सीपेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं
उनके ऊपर क्या अपडेट है? यस और दूसरी बात कि जो क्योंकि शुरू वहाँ से होना है, और क्या हम आने वाले वक्तों में कोई इकोनॉमिक जोन देखेंगे इस एरिया के अंदर, क्योंकि चाइना के साथ मिलकर जो है कोई प्रोडक्शन दे सके, चाहे ड्राई फ्रूट की हो, चाहे मिल्क की हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ पर तैयार हो सकती है? अच्छा, बेहतरीन भाई आपका सवाल है। आपने सी पैक के हवाले से देखें, पिछली गवर्नमेंट ने सी पैक को लेके ना गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी बातें की थी, वफाक में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो एक सिंगल प्रोजेक्ट सी पैक का गिलगित बल्तिस्तान के लिए शेयर नहीं था। फर्स्ट टाइम ये जो गिलगित चित्राल शंदूर रोड है, ये सी पैक में हमने शामिल करवाया है। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप ले लें प्लानिंग डिवीज़न से, आप इसके डॉक्यूमेंट्स ले लें, आपको पता चल जाएगा। एक फिर 2 मेगा पावर प्रोजेक्ट्स हम सी पैक में रिकमेंड किया है। हमसे आगे से उन्होंने सी पैक की जो कमेटी है, अरबाब साहब लोग, वो गिलगित बल्तिस्तान गए थे 10 दिन पहले। उनके साथ बड़ी अच्छी गुफ्त शुनीद हुई है, वहाँ पर स्पेशल इकनॉमिक जोन की बात हुई है। फिर जो आप कहते हैं कि सी पैक में हमारे पास जो एक बेहतरीन किस्म का वहाँ पे फ्रूट पैदा होता है गिलगित बल्तिस्तान में, उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि बड़े कोल्ड स्टोरेजेस हम बनाएं उसकी बेहतरी के लिए, कि हम उसको एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाएं। क्योंकि हमारा जो एप्रिकॉट की मैं मिसाल देता हूं कि एप्रिकॉट का तकरीबन 70% एप्रिकॉट्स वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उसको उसके बेहतरी के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, मशीनरी नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। तो गवर्नमेंट उस तरफ जा रही है ताकि हमारी वहाँ की जो प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन, वो एक्सपोर्ट करने के काबिल बन जाए, वेस्ट ना हो। तो बताउल्लाह साहब ये बता दें कि साद रिजवी साहब की और आपका दूसरा सवाल है, मेरे ख्याल से किसी और भाई को, साद रिजवी को डिस्कस नहीं करेंगे। सर इम्पोर्टेंट सवाल है, साद रिजवी को नहीं बल्तिस्तान करेंगे। के पहाड़ों पे दहशतगर्द घूम रहे, आजाद कोई नहीं घूम रहा है, वो ऑफिसर जाके में उससे गोली पूछे। कचहरियां लग गई। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 लगा हुआ है और सियासी कायदीन है, आपके अपने मेंबर असेंबली इस वक्त शेड्यूल 4 में, उनके हवाले से अब तक क्या इकदाम करी तहरीक इंसाफ? देखें, शेड्यूल 4 मेरा कोई काम नहीं है। शेड्यूल 4 में अगर कोई मेंबर है तो वो शेड्यूल 4 से निकले, नंबर 1। नंबर 2, गिलगित बल्तिस्तान बहुत पुरअमन इलाका है। वो एक साबका कोई इंटीरियर मिनिस्टर ने शायद कोई बयान दिया है कि जी गिलगित बल्तिस्तान में तालिबान का, कोई तालिबान नहीं है, सारा झूठ है। उसने पता नहीं किस हालत में ये बात की है, मुझे उसकी हालत का वो नहीं है। हाँ भाई, तो खान साहब, यही शेड्यूल 4 के हवाले से मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे इस्लामाबाद में रिसेंटली बहुत डेवलपमेंट हुई है कि जैसे KLP के साथ हुआ, साथ रजवी और उसके 474 साथियों को शेड्यूल 4 से निकाल दिया। इसी तरह जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक गुना क्या साथ रजवी या KLP से बड़ा है जो आप अभी तक उनको शेड्यूल 4 में रखा? निकलेंगे यार, वो निकलेंगे इंशाल्लाह, निकालेंगे। अब मैं उनके साथ हूँ, हमारी यूथ है, हम निकालेंगे उनको। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर रहेंगे। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शेड्यूल 4 से निकाला तो गया है कोई 6 महीने पहले, लेकिन उनके जो अभी भी जो राइट्स हैं वो उनके बहाल नहीं है, जैसे उनके वो हो जाएंगे। आपको खुद पता है ना, कोई भी काम आप अगर इकदाम उठाते हैं तो उसके पीछे फिर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। नहीं, रातों रात नहीं हुआ। वो तो कंसेंसस बहुत टाइम से चल रहे थे ना, तो बल्कि हमारे इलेक्शन से पहले की कहानियां हैं वो। सर ये बताइएगा कि गिलगित एक टूरिस्ट प्लेस है और टूरिस्ट हब माना जाता है। गिलगित के अंदर जैसे कि हफीजुर रहमान साहब ने भी कुछ एलिगेशंस लगाए कि पुरअमन नहीं है या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान सिटी के अंदर गिलगित के जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था उसके कैमरे बंद थे। ये एक सवाल सर इसके साथ ऐड कर दें। दूसरा सवाल ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इलेक्शन से पहले वहाँ पे बुलंद दावे किए कि मैं आईनी सूबा और 4 अजला दूँ, जो जिनके ऊपर 1 साल हो गया, क्या अमल दरामद उनके ऊपर हुआ या होने जा रहा है? तीसरा सवाल सर ये है कि आप भी अपने दिगर कायदीन के नक्शे कदम पे चलते हुए गुज़श्ता हुकूमत पे सारा मलबा डाल रहे हैं। 1 साल के अंदर आपने ऐसे कौन से प्रोजेक्ट जो रन हो रहे हैं जिससे आवाम को डायरेक्टली फायदा हो रहा है, रन हो रहे हैं? एक तो लॉन्ग टर्म बात है। अरे वो मैंने भाई बताया है, जो शंदूर रोड का मैंने आपको बता दिया। इवन मैं चलें ये भी बता देता हूँ, 3 दफ़ा हफीजुर रहमान मेरे हल्के से जीते।
मेरा जो अपना जो गांव है, जो एक सब डिवीज़न है, मेरे हलके में 2 सब डिवीज़न से, एक गिलगित सब डिवीज़न, एक जगलोट सब डिवीज़न। मैंने पूरे सब डिवीज़न के लिए 32 करोड़ रुपए की स्कीम रख के टेंडर भी हुआ है, काम शुरू होने लगा। मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बाकी आपके उसकी तरफ आता हूँ। CCTV कैमरा जो सेफ सिटी के नाम पे, इन लोगों ने सेफ सिटी के नाम पे CCTV कैमरास लगाए गिलगित शहर में। आप इनसे, हफीज़ुर रहमान साहब से मेरा ये सवाल है, क्या आपकी गवर्नमेंट जाने से पहले वो सारे CCTV कैमरा जिंदा थे या वो मर गए थे? कोई भी ठीक नहीं था। वो तो प्रोजेक्ट लगाना बहुत आसान काम है, उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा सवाल होता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है। उसके अलावा इन्होंने सोलर छोटे छोटे वो लाइटें लगाई थी मेन रोड के ऊपर, बिलखुसूस जुटियाल से लेके खोमर से होते हुए नीचे शहर तक। कोई एक सोलर की लाइट ऑन हो तो आप देख लें, सारे ख़राब पड़े हैं। तो इस पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, इन्हीं के अपने दौर में हुआ है। अब गिलगित सिटी को सेफ सिटी की तरफ ले जाने के लिए हमने पूरा प्रोजेक्ट रखा है, इंशाल्लाह हम रखेंगे। और फिर अली अमीन साहब का आपने कहा कि सूबा और डिस्ट्रिक्ट्स, इंशाल्लाह ताला सूबा भी बनेगा और हमारे 4 अजला भी बनेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ करते हैं इंशाल्लाह अगले साल आप हमें मिलें और ये सारे प्रोजेक्ट्स हुए।